Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Kanpur Public Schools. Students, nowadays we are studying fifth chapter in our book Flamingo, that is Indigo by Louis Fisher. You know, Indigo is a narrative about the reasons that led Gandhiji to take upon himself the task of ousting the British from our motherland. As I have explained that this excerpt is from Louis Fisher's book The Life of Mahatma Gandhi and contains a first-hand account of British high-handedness and oppressive policies that led to the involvement of the masses in the freedom movement. The events and facts in the chapter help the readers to understand the method and principles of Gandhian activism. Gandhiji's decision to seek the ouster of the British regime from India was affected by an incident that happened in 1917. In December 1916, Gandhiji had gone to Lucknow to attend the annual convention of the Indian National Congress. यह हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दिसंबर 1916 में आईएनसी का 1916 का एनुअल कन्वेंशन हुआ लखनऊ में and Gandhiji had gone to attend that annual convention. Rajkumar Shukla, a poor farmer from Champaran, approached him and requested him to visit his place to see the plight of the indigo planters in the part of the country. However, Gandhiji had prior commitments and he could not go with Shukla at the same time. But the indigo croppers patiently followed Gandhiji to all the places that he went. Noticing the persistence of this man, Gandhiji decided to accompany him to Champaran. The duo reached Patna and stayed for one night at the house of Rajendra Prasad, who later became the President of India. Then on they moved to Muzaffarpur, where they were received by Professor J.B. Kripalani and his students. Gandhiji stayed at the house of Professor Malkani, who was a government school teacher. This was unusual because government employees were generally reluctant to show any inclination towards the congressmen or anyone who were the advocates of home rule. So we had read up to this point. Today we have to proceed. So please open your book on page number 48. So let us continue. The news of Gandhi's advent and the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. So this news that Gandhi had come to Muzaffarpur to help the sharecroppers, this news is spread in Muzaffarpur and Champaran like a forest fire. जंगल की आग की भांति ये समाचार कुल फैल गया. So sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. तो जितने भी sharecroppers थे, all the sharecroppers from Champaran began to
gather in Muzaffarpur to see their champion, to see the man who had gone there to help them. और जिस भी तरीके से वहाँ तक चंपारण से मुजफ्फरपुर पहुँचने का जो भी तरीका उनको मिला, कुछ लोग पैदल ही पहुँच गए, कुछ लोग जैसे भी जो भी साधन मिला, they reached over there. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. So, मुजफ्फरपुर के जितने भी लायर्स थे वो गांधी के पास आए, उनको सारे जितने केसेस थे, जो भी शेयर क्रॉपर्स के केसेस वो लोग लड़े थे अब तक कोर्ट में, उन सब का नेचर, उन सब की कंडीशन को बताया, ये भी बताया, भी पूछा उन्होंने कि आप कितनी फीस लेते हैं, व्हाट फी यू चार्ज फ्रॉम दीज पुअर पीजेंट्स. सो दे रिपोर्टेड द साइज ऑफ द फी आल्सो. गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. गांधी ने इस बात के लिए शेयरक्रॉपर्स से फीस लेने के लिए लॉयर्स को अच्छी खासी जो है डांट सुनाई. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Just try to understand. ये एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो कि खुद एक बैरिस्टर है. वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि शेयर क्रॉपर्स के केस में उन सबको लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए. क्यों? Because he knew very well that taking such cases to the courts does little good. इस तरह के केसेस कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा, बहुत ही मतलब ना के बराबर फायदा होगा शेयर क्रॉपर्स का. क्यों? Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. जहां पे जो peasants हैं वो ऑलरेडी crushed हैं, fear stricken हैं. ये ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रश किए गए हैं. ब्रिटिश प्लांटर्स हैं उनके द्वारा ऑलरेडी क्रस्ड हैं, डरे हुए हैं. They are highly afeared. They know it very well कि अगर कोर्ट में केस गया तो वो जीतने वाला नहीं है. सो यहाँ पे जो मैटर है वो मैटर ये करेगा कि उनको उनके इस फियर से दूर किया जाए. If anything that is going to give relief to these peasants or to these sharecroppers, that is to make them away from the fear, to make them free from fear. उन्हें इस डर से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना पड़ेगा. और अगर हम इनके केस को लेके इफ दे गो टू लॉ कोर्ट्स विद देयर केसेस, नथिंग गुड इज गोइंग टू टेक प्लेस. कुछ भी अच्छा नहीं होगा. नहीं, एक्चुअली मैटर क्या है? व्हाट इज द मैटर ओवर देयर? मैटर ये है कि मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क्ड बाय इंडियन टेनेंट्स. जो जितना भी अरेबल लैंड है उसका ज़्यादातर हिस्सा, खेती करने लायक जितना भी लैंड है चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, वो बड़े बड़े स्टेट्स में बटा हुआ है. और उन स्टेट्स, वो स्टेट्स हैं किसके? दोज स्टेट्स आर ओन्ड बाय इंग्लिशमैन. वो स्टेट्स, वो रियासतें किसकी हैं? इंग्लिशमैन की. और उन स्टेट्स
पे मैटर ऑफ एक्चुअली वर्क कौन करता है? इंडियन वर्क करते हैं। दे आर इंडियन टेनेंट्स ओवर देयर, वो किराएदार हैं। मतलब दे पे रेंट फॉर द एग्रीकल्चरल जॉब दैट दे परफॉर्म ओवर देयर। वो जमीन अंग्रेजों की है, उस जमीन पे खेती करते हैं इंडियन टेनेंट्स, और उस खेती करने के लिए उनको लगान देनी पड़ती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। उस समय की जो सबसे मेन कमर्शियल क्रॉप थी वो इंडिगो थी। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 50% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. रेंट के रूप में क्या? रेंट के रूप में वो पैसे नहीं लेते थे। कहते क्या थे कि रेंट के रूप में जितनी भी जमीन पे वो खेती कर रहे हैं उसके 3/20 पार्ट, 3/20 पार्ट को अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 15% होता है। 15% होल्डिंग पे वो लोग इंडिगो पैदा करेंगे अपने खर्च पे वो इंडिगो पैदा करेंगे, और वो पूरी की पूरी इंडिगो वो रेंट के रूप में अंग्रेजों को दे देंगे। और ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रैक्टिस थी, वो कोई नई प्रैक्टिस नहीं थी। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कंट्रैक्ट। एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ये प्रैक्टिस चल रही थी। अभी क्या हुआ? वो टू द प्रॉब्लम ये थी कि प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अभी जो प्रॉब्लम पैदा हो रही वो इसलिए पैदा हो रही कि इन लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिश प्लांटर्स को मालूम चल गया है, दे हैव कम टू नो दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। उनको मालूम चल गया है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। तो अभी वो शेयरक्रॉपर्स से एक जो है एग्रीमेंट चाहते हैं। वो एग्रीमेंट इस बात का है कि उन्हें अब उस 15% पे जो इंडिगो इन लोगों ने पैदा किया है वो इंडिगो नहीं चाहिए, बल्कि उसके स्थान पे कंपेंसेशन चाहिए। मतलब दे वांट मनी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अभी तक वो नेचुरल इंडिगो इनसे पैदा करवाते थे और उस नेचुरल इंडिगो को वर्ल्ड मार्केट में बेचते थे। चूंकि अभी तक सिंथेटिक इंडिगो नहीं बना था, इसलिए उस इंडिगो का उन्हें अच्छा खासा प्राइस मिलता था। और चूंकि ये सबको इंडिगो पैदा करने के लिए अलाउ भी नहीं करते थे, मतलब केवल 15%। अगर आपको अंग्रेजों ने आपको 100 दिया है, उसमें से केवल 15% होल्डिंग पर ही आप इंडिगो पैदा करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पूरे के पूरे पे कर लेंगे, नहीं, आप केवल 15% पे करेंगे और 85% पे आप और कुछ आपको जो और उगाना है, गेहूं है, चना है, दाल है, जो पैदा करना हो आप करो। केवल 15% पे आप इंडिगो उगाओगे और इंडिगो जो उगाओगे वो ब्रिटिशर्स को रेंट के रूप में दे दोगे। इसका मतलब एक तरफ देखा जाए तो उन्होंने अपनी मोनोपोली मेंटेन कर रखी थी इन द मार्केट। लेकिन अब जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो पैदा कर लिया, तब उनका अट्रैक्शन अब इंडिगो नहीं रहा। अब वो चाहते थे कि उनको पैसा मिल जाए। The sharecropping arrangements was irksome to the peasants
ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था ये इन पीजेंट्स के लिए थोड़ा सा इरसम था और उनकी समझ में नहीं आया था और उन लोगों ने से कुछ नहीं तो विलिंगली साइन भी कर दिया। दोज हु रेजिस्टेड, जिन्होंने उसका विरोध किया, इंगेज लॉयर्स, उन लोगों ने लॉयर्स इंगेज किए। द लैंडलर्स हायर्ड थग्स, और ये शेयर क्रॉपर्स तो लॉयर्स इंगेज किए और ये जो लैंडलॉर्ड थे इन लोगों ने थग्स हायर किए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, और अब धीमे धीमे ये जो पूरी कहानी है ये उन बेचारे इलिटरेट पीजेंट्स के पास तक पहुंच गई। कौन से इलिटरेट पीजेंट्स? हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। जिन लोगों ने इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया था अब वो चाहते थे कि उनका पैसा वापस हो जाएगा, कि उन लोगों ने एग्रीमेंट पे भी साइन कर दिया और कंपेंसेशन के रूप में ब्रिटिशर्स को रेंट भी पे कर दिया। प्रॉब्लम ये थी, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड एट चंपारण। ये पॉइंट था जबकि गांधी चंपारण पहुंचे थे। गांधी का चंपारण पहुंचने का ये मौका था। अब ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। गांधी पेटिशनर्स के रूप में बड़े एक्सपर्ट इंसान थे। अब पेटिशन करने के लिए सारे प्रूफ, सारे फैक्ट्स, सारे एविडेंसेस पहले से इकट्ठा करना है और तब जाके उन्हें जो है उनके सामने अपनी बात रखना है। वो ऐसे ही नहीं पहुंच जाएंगे। तो ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। शुरुआत कहाँ से किया उन्होंने? फैक्ट्स कलेक्ट करने से। और फैक्ट्स कलेक्ट करने के लिए ये सबसे पहले क्या किए? फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। वो सबसे पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास जा पहुंचे। सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन, क्योंकि उस समय आरटीआई नहीं था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं था कि कोई भी आदमी जाए किसी गवर्नमेंट ऑफिस में और जितने भी इंफॉर्मेशन थे वो ले ले। नहीं, आरटीआई वाज नॉट देयर। तो जब ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए तो सेक्रेटरी ने कहा कि वो इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों? बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर। ये चंपारण के नहीं थे ना, ये तो आपके गुजरात के थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप गुजरात के हो, आप यहाँ चंपारण के नहीं हो, यू आर एन आउटसाइडर, सो you will not be given any information or you don't have any right to get any information. Gandhi answered that he was no outsider. लेकिन गांधी ने कहा no, I am not an outsider. मैं भी एक इंडियन हूँ and being an Indian I have full right to get informed. फिलहाल whatsoever he could not get any information from British Landlords Association's secretary. Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. जब वहाँ से उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो गांधी उसके बाद तिरहुत डिवीज़न के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के ऑफिस पहुँच गए। तिरहुत डिवीज़न वो डिवीज़न था जिसके जुरिस्डिक्शन में चंपारण आता था। गांधी जी रिपोर्ट करते हैं कि द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी। कमिश्नर ने गांधी को बुली करने का प्रयास किया, धमकी देने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। और यही नहीं, उसने तो हमको यहाँ तक सलाह दे डाली कि जितनी जल्दी हो सके तिरहुत छोड़ के चले जाओ। उस जो है
वहां से भी कुछ फायदा नहीं हुआ, उसने छोड़ के चले जाओ। अब गांधी कहाँ मानने वाले थे? गांधी डिड नॉट लीव। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। वहां से छोड़ के जाने के स्थान पे वो वहां से मोतिहारी चले गया। मोतिहारी चंपारण की कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स एक्कम्पनीड हिम, और उस समय उनके साथ कई एक वकील उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। वहां रेलवे स्टेशन पे एक बड़ी भारी भीड़ ने गांधी को ग्रीट किया, और वहां से वो एक घर में गए। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और उस घर को इन्होंने हेडक्वार्टर के रूप में यूज किया। एंड कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. When he was over there and working on the investigations, he came to know, or he came to get a report कि भाई गांव के किसी एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया। फिर क्या था? गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगली सुबह, अब चूंकि उस समय इतनी अच्छी व्यवस्था तो थी नहीं कि मोटर बाइक हो, कार हो, एक हाथी पे सवारी करके गांधी स्टार्टेड फॉर दैट प्लेस। He had not proceeded for when the police superintendent's messenger overtook him. अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर उनको ओवरटेक किया और उनको रोक लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। उनको ऑर्डर किया कि वापस आप टाउन में चले जाइए इन हिज कैरेज। ओके, फिलहाल गांधी जी ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया। गांधी कंप्लाइड। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो उस मैसेंजर ने उनको वापस मोतिहारी ले आने के लिए, और मोतिहारी अपने घर आए। जब घर आए तो मैसेंजर ने घर पे उनको एक ऑफिशियल नोटिस दिया, जिसमें ऑफिशियल नोटिस थी कि क्विट चंपारण इमीडिएटली। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था कि चंपारण जितनी जल्दी हो सके छोड़ के चले जाओ। गांधी साइंड और रिसीव्ड फॉर द नोटिस। गांधी जी ने उस नोटिस के रिसीव के लिए साइन किया। एंड रोट ऑन इट दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू ओबे द ऑर्डर। साफ साफ लिख दिया कि वो ऑर्डर ओबे नहीं करने जा रहे। अब आप समझ सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में ब्रिटिश ऑफिशियल और ब्रिटिश आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट्स, पुलिस सुपरिंटेंडेंट के ऑर्डर को डिसओबे करने का मतलब है डिसओबीडियंस। और चूंकि ये डिसओबीडियंस सिविल रूप में किया गया था, सो ये था सिविल डिसओबीडियंस। अब वेरी सिंपल सी बात है, अगर ऐसा होगा तो परिणाम अच्छा होगा नहीं। परिणाम क्या हुआ? इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी को ने जो है को सम्मन मिला कि नेक्स्ट डे आप कोर्ट में अपीयर होइए। सो ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. Whole night Gandhi remained
waking. He could not sleep. He did not sleep. And in the night, what did he do? He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. पहली बात ये किया कि उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के पास टेलीग्राफ किया कि जितनी जल्दी हो सके बिहार से वहाँ चले आएं और अपने साथ कुछ प्रभावशाली फ्रेंड्स को भी लेवा के आए. ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम. यही नहीं, अपने आश्रम सेवाग्राम आश्रम को भी सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए. ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय. और यही नहीं, वायसराय को भी पूरी रिपोर्ट सेंड कर दी. आई मीन अपनी पूरी तैयारी कर ली. वायसराय को इन्फॉर्म कर दिए कि उनके साथ यहाँ पे ये हो रहा है. अगर उनको जेल हो गया तो आश्रम का सारा काम चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए आश्रम को भी इंस्ट्रक्शन सेंड कर दिए. और अपनी हेल्प के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि उस समय बिहार के बहुत बड़े माने आने वकील थे, एडवोकेट थे, उनको टेलीग्राफ किया कि वो एज सुन एज पास कल जो है उनको वो कल कोर्ट में उनका सम्मन है और अपने साथ कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लिवा के चंपारण पहुंचे. What happens next? We shall find out in our next class. By then, thank you. Have a nice day.